پیغام عمری صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ یہ فسانہ محبت بزبان دیگرا کیا، یہ فسانہ محبت بزبان دیگرا کیا، اسے تم اگر سناتے تو کچھ اور بات ہوتی، اور یہ ہوا کے مست جھونکے جو چمن سے آ رہے ہیں تیری زلف چھو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ حضرات گرامی، میں شیخ کو کہوں گا کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ مائک پر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پیغام عمری حفظ اللہ، میں شیخ کو آپ کے حوالے سونپتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری متانت اور سنجیدگی کے ساتھ شیخ کے پیغام کو سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین، بزرگان ملت، پردہ نشیں خواتین اسلام، چھوٹے چھوٹے اور ننھے منھے اسلامی بچوں، تعلیم کو مقصد بنا کر کے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ بچوں نے بہترین انداز میں علمی مظاہرہ کیا ہوگا، اچھی تیاریاں ہوئی ہوں گی۔ تعلیم کا مقصد آخرت کی تیاری ہو، اور یہی مقصد تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کی خاطر دنیا میں بھیجے گئے، یہی مقصد تھا کہ اللہ کے بندوں کو
اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارے، مختصر زندگی میں رہ کر کے اخروی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس زندگی کی تیاری کرے۔ یہی کیا ہے؟ مقصد حیات ہے، مقصد زندگی یہی ہے کہ آدمی دنیا میں جس حال میں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، مقصد حیات کو نہ بھولیں، فکر آخرت کو اپنے ذہن و دماغ سے اوجھل نہ ہونے دیں، شریعت کے مطابق روزانہ آدمی آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ ورنہ اگر آدمی شریعت کے مطابق آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے، اپنے انداز میں جیتا ہے، اپنے انداز میں عمل کرتا ہے، تو بسا اوقات آدمی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، آدمی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نماز تو پڑھتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، دیگر اعمال بھی کرتا ہے، لیکن شریعت کے مطابق آخرت کی تیاری کا اسلوب ان کی زندگی میں نہیں ہے، اعمال کی حفاظت کرنے کا شرعی طریقہ ان کی زندگی میں نہیں ہے، جس بنیاد پر آدمی کی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ کیسے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم في کتاب البر والصلة۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، کیا آپ سب کو پتا ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ لاچار اور مجبور کسے کہا جاتا ہے؟ کہا من لا درہم لہ ولا متاع، جن کے پاس روپے پیسے نہ ہو۔ آج بھی کسی سے سوال کیا جائے کہ محتاج کون ہے، جواب ملے گا جن کے پاس روپے پیسے نہ ہو، بینک بیلنس جن کا نہ ہو۔ کہا میں نے دنیا کی مفلسی کے بارے میں نہیں، میں نے تو آخرت کے دن کی مفلسی کے بارے میں سوال کیا ہے کہ آخرت کے دن مفلس کون ہوں گے، آخرت کے دن محتاج کون ہوں گے۔ دنیا میں کتنے ایسے مالدار ہیں جو آخرت میں محتاج ہوں گے، پائی پائی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ کہا میں نے اس دن کی مفلسی کے بارے میں سوال کیا۔ کہا کہ ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بالصلاۃ والصیام والزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزہ لے کر کے آئے گا، نماز لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، علی ھذا القیاس، اور بڑے بڑے اعمال گنا لیجئے، حج لے کر کے آئے گا، صدقات و خیرات لے کر کے آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، اور ساری نیکیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گی۔ وہ خوش ہوگا، میرے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہیں، شریعت کے مطابق کی گئی، میرے پاس نیکیاں ہیں، اب مجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ کیونکہ جنت میں جانے کے لیے نیکیاں کا ہونا ضروری ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو۔ لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، ابھی وہ بندہ خوش ہو رہا ہوگا کہ ایک شخص آئے گا، وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اے اللہ اس نمازی صاحب نے، اس حاجی صاحب نے، اس زکاتی صاحب نے مجھے گالی دیا تھا، دنیا کے اندر مجھے انصاف نہیں ملا، آج تو انصاف کا دن ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ وَقَذَفَ هَذَا، اے اللہ اس نے مجھ پر بہتان لگائے گا، ایک اور آئے گا، اے اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، مجھ پر بہتان لگایا تھا، یہ حاجی صاحب ہے، یہ نمازی صاحب ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ایک اور آئے گا، اے اللہ اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا تھا، میری زمین پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا تھا۔ کتنے ایسے پہلی صف کی نمازی ہیں جنہوں نے بھائی کا حق دبا کر کے رکھا ہے، بہنوں کا حق دبا کر کے رکھا ہے، پڑوسیوں کا حق دبا کر کے رکھا ہے، اپنے پارٹنر کا حق دبا کر کے رکھا ہے، اور کیا ہے؟ پہلی صف کے نمازی۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس نے میرا خون بہایا تھا، کیا ہوگا؟ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ،
शिकायत करने वाले शिकायत लेकर के आते रहेंगे। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नमाजी साहब की नमाज की नेकियों को उठा करके, हाजी साहब के हज की नेकियों को उठा करके शिकायत करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा शिकायत करने वालों का तांता अभी लगा रहेगा, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। नमाज की नेकियां खत्म, रोजे की नेकियां खत्म, हज की नेकियां खत्म, ज़कात की नेकियां खत्म, सदकात की नेकियां खत्म। क्या होगा? अब शिकायत करने वाले शिकायत कर रहे हैं, अब क्या होगा? तो वयाती हादा मिन हसनातिही व हादा मिन हसनाती फइन फनियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दम अलैहि। शिकायत करने वाले आते रहेंगे, नेकियां खत्म, उखिदा मा खतायाहुम। शिकायत करने वाले के गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला उठा करके इस शख्स पर डाल देगा जिनके पास चंद लम्हा पहले बहुत सारी नेकियां थी। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और उस शख्स को आग में डाल दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए, आखिरत की तैयारी का अंदाज शरीयत के मुताबिक ना हो तो आदमी नमाज भी पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, लेकिन इन अमाल की हिफाजत का तरीका अगर नहीं है तो हकीकी माना में वो आखिरत के मामले में हसास नहीं है। अल्लाह का हक तो अदा कर रहा है, लेकिन अल्लाह के बंदों का हक अदा नहीं कर रहा है। हकीकी मामलों में वो शख्स आखिरत के मामले में हसास नहीं है, और मामला ऐसा होगा कि कल क़यामत के रोज इनकी नेकियां दूसरे लोग उठा करके ले जाएंगे। तो नेकियों की हिफाजत का तरीका अपनी जिंदगी में शरीयत के मुताबिक इख्तियार करना, ये क्या है? आखिरत की तैयारी का बेहतरीन तरीका है, आखिरत की तैयारी का बेहतरीन उस्लूब है। अगर आदमी अपने आमाल की हिफाजत इस नहज पर नहीं करता है, आदमी की नेकियां बर्बाद हो जाने वाली। आखिरत की तैयारी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी को देख लीजिए। आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ है, हमारा ये अकीदा है। क़यामत के दिन सबसे पहले आपको सिफारिश की इजाजत दी जाएगी। जब तक आप जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे नहीं, किसी और के लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। लेकिन अमली तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास देख लीजिए। कई मिसालें हैं, आप परेशान रहते हैं, बेचैन और बेकरार रहते हैं आखिरत की तैयारी के एतबार से, लिहाजा उम्मत मोहम्मदिया को किस कदर हसास रहना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक दो हदीस है। वान मुतर्रिफ अन अबीही क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली व फी सदरिही अज़ीज़ुन का अज़ीज़िर रहा मिनल बुका, रवाहु अबू दाऊद फी किताबिस सलाम। अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन शिखैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मैं क्या देखता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। और नमाज में कैफियत क्या है? रब्बुल आलमीन से रिश्ते की अहमियत क्या है, किस कदर रब्बुल आलमीन से कनेक्ट है। वफी सदरिही अज़ीज़ुन का अज़ीज़िर रहा मिनल बुका, नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, और रोने की वजह से आपके सीने से उसी तरह से आवाज आ रही थी जिस तरह से चक्की पीसते वक्त चक्की से आवाज आती है। कहा साहब, हम तो नमाज पढ़ते पढ़ते ही नहीं है, रोना तो दूर की बात है। रमजान खत्म, नमाज खत्म, ये नहीं होता है। रमजान खत्म, नमाज खत्म। अरे भाइयों, रमजान का ये जो महीना है, मुत्तकी बनाने के लिए ये महीना आता है कि ताकि तहयात आप नमाजी बन करके रहें, तहयात आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। मुसलमानों में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि रमजान खत्म हो जाता है, मुसलमानों में हलाल और हराम की तमीज भी खत्म हो जाती है। रमजान का महीना खत्म हो जाता है, झूठ और सच की तमीज भी खत्म हो जाती है। रमजान का महीना खत्म हो जाता है, आदमी बदज़बान हो जाता है। रमजान का महीना खत्म हो जाता है, हमारे मोबाइलों का गलत इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। रमजान का महीना खत्म हो जाता है, नौजवान अपनी जवानी को अय्याशी में, मक्कारी में, ज़िनाकारी में और जुआ में, शराब पीने में और ना जाने किन किन आदतों में अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
आखिरत की तैयारी का तरीका, कहते मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप रो रहे हैं और रोने की वजह से, चक्की पीसने की वजह से चक्की से जो आवाज आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से उसी तरह से आवाज आ रही थी। अमली नमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी तरह से एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं कि इब्ने मसूद मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान आप पर उतरा है, मैं पढ़ के सुनाऊं? कहा मैं दूसरों से सुनना चाहता हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ने लगते हैं, कुरान पढ़ने लगते हैं। क़यामत की जिम्मेदारी की आयत से जब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत बदल जाती है। कहा साहब हमारी कैफियत कहाँ बदलेगी? कुरान पढ़ेंगे तब ना। कुरान पढ़ना नहीं आता है। कुरान को बस हमने रमजान में पढ़ने के लिए एक सिस्टम बना रखा है। कुरान को पढ़िए, कुरान से रिश्ते को जोड़िए, अपनी औलाद को कुरान, अपने औलाद के दिलों में कुरान की मोहब्बत पैदा कीजिए। वरना याद रखिए एक वक्त ऐसा आने वाला है, इस कौम का कोई रहबर नहीं मिलने वाला है, इस कौम का कोई रहनुमा नहीं मिलने वाला है। अगर कुरान से हमने रिश्ते को तोड़ा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिल्लत व खारी मुसल्लत कर दी जाएगी। आज तारीख उठा करके देख लीजिए। कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान आप पर उतरा है और मैं पढ़ के सुनाऊं? कहा क्या हदीस है? वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल अली अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा अलैया अल कुरान क़ुल्तु या रसूलल्लाह अक़रअु अलैका व अलैका उन्ज़िल फ़क़ुल्तु नाम फ़इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन ग़ैरी फ़क़रअतु अलैहि सूरतन निसा हत्ता अतैतु फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा क़ाल हस्बुक फ़ल्तफ़तु इलैहि फ़इज़ा ऐनाहु तज़रिफ़ान रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तफ़सीर। बुखारी शरीफ के अंदर किताब तफ़सीर में यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि इब्ने मसूद मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है। ये नुक्ता इस हदीस से पता चलता है। कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान आप पर उतरा है और मैं पढ़ के सुनाऊं? कहा मैं दूसरों से सुनना चाहता हूं, मैं दूसरों से सुनना चाहता हूं। कहते फ़क़रअतु अलैहि सूरतन निसा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैंने सूरह निसा की तिलावत शुरू कर दी। हत्ता अतैतु फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। यहाँ तक कि जब मैं पढ़ते पढ़ते सूरह निसा आयत नंबर 41 पर पहुंचा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मत पढ़िए, अब मत पढ़िए, अब मत पढ़िए। क्यों? क्या है इस आयत के अंदर? इस आयत के अंदर जिम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाई गई है कि क़यामत के दिन आपका महाल क्या होगा, क़यामत के दिन आपका मामला क्या होगा। जब हर उम्मत में से एक गवाह को बुलाएंगे और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम गवाहों पर हम आपको गवाह बनाएंगे, क़यामत के दिन आपका उस वक्त हाल क्या होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बदल जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत बदल जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की हौलनाकी में खो जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहाने लगते हैं। और चंद लम्हा पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इब्ने मसूद मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। चंद लम्हा बाद कहते हैं कि हस्बुक, मत पढ़िए आप। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फ़ल्तफ़तु इलैहि फ़इज़ा ऐनाहु तज़रिफ़ान, जब मैंने नजर उठा करके देखा, क्या देखता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमली नमूना आखिरत की तैयारी के एतबार से, आखिरत के दिन के ताल्लुक से हसास रहने के एतबार से। कुरान उठाइए, सूरह अल इमरान आयत 185 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उस आयत के अंदर मौत की वार्निंग देता है।
अल्लाह तबारक व तआला ये वाज़ेह करता है कि लोगों, मर जाना होता तो कोई बात नहीं, लेकिन मरने के बाद क़यामत का मामला है, आखिरत के दिन का मामला है, वहां पर पूरा पूरा हिसाब देना पड़ेगा। और जो आग से बचा लिया गया, और जो आग से बचा लिया गया, और जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यही शख्स कामयाब जिंदगी गुजारने वाला शख्स होगा। और ऐ लोगों सुनो, दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। जिस कदर आप दुनिया के पीछे भागते चले जाएंगे, ये दुनिया उसी तरह आपको आखिरत से दूर करती चली जाएगी। क्या है आयत? आयत के मफ़हूम पर गौर कीजिए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। हर शख्स को मौत का मजा चखना है। जो भी इस दुनिया के अंदर आया है, एक ना एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है। कोई बाप की शक्ल में दुनिया छोड़ करके जाता है, कोई माँ की शक्ल में दुनिया छोड़ करके जाती है, कोई भाई की शक्ल में दुनिया छोड़ करके जाता है, कोई बेटे की शक्ल में दुनिया छोड़ करके जाता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आदमी मर जाए और मरने के बाद हिसाब व किताब का मामला ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कुरान वार्निंग देता है कि लोगों, तुमने मरने से पहले दुनियावी जिंदगी में जो कुछ भी किया है, क़यामत के दिन तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अन्नार व उदख़िलल जन्नह, जो आग से बचा लिया गया। दुनियावी जिंदगी में जिन्होंने अपनी जिंदगी की हिफाजत की, दुनियावी जिंदगी में जिन्होंने कुरान और हदीस के मुताबिक अमल किया, दुनियावी जिंदगी में जिन्होंने अल्लाह के हुकूक को अदा किया, दुनियावी जिंदगी में जिन्होंने अल्लाह के बंदों के हुकूक को अदा किया, दुनियावी जिंदगी में जिन्होंने हर हाल में ईमान की हिफाजत की, दुनियावी जिंदगी में जिन्होंने हर हाल में तौहीद की हिफाजत की, दुनियावी जिंदगी में जिन्होंने हर हाल में अल्लाह को याद रखा, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारा। फमन ज़ुहज़िहा अन्नार, जो आग से बचा लिया गया, व उदख़िलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़। कुरान कहता है कि वो शख्स कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुरान कहता है कि लोगों, दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। जिस कदर आप दुनिया के पीछे भागते चले जाएंगे, ये दुनिया उसी कदर आपको आखिरत से दूर करती चली जाएगी। जिस कदर आप दुनिया की रंगीनियों में खोते चले जाएंगे, ये दुनिया आपसे इबादत को छीन लेगी, ये दुनिया आपसे नमाज को छीन लेगी, ये दुनिया आपसे रोजे को छीन लेगी, ये दुनिया आपसे अच्छे अखलाक को छीन लेगी, ये दुनिया आपसे बंदों के हुकूक को छीन लेगी, ये दुनिया आपसे रात के आंसुओं को छीन लेगी, ये दुनिया आपसे अल्लाह तबारक व तआला की ताअत व बंदगी को छीन लेगी। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनियावी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ धोखे का सामान है। कुरान की आयत कई तरह की बातों को वाज़ेह फरमाता है। लिहाजा एक मुसलमान की जिंदगी में आखिरत की तैयारी का मेयार ये होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना आखिरत के ताल्लुक से वाज़ेह है, हमारा अमली नमूना भी आखिरत के ताल्लुक से वाज़ेह होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की दलील यह है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक आखिरत की तैयारी करें, चाहे मर्द का मामला हो, चाहे खवातीन का मामला हो। सहाबा किराम का मामला आखिरत की तैयारी के ताल्लुक से, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोग नंगे बदन, नंगे पांव और खतना किए बगैर उठाए जाएंगे, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सवाल करती हैं और पर्दे के बारे में सवाल करती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त औरतों का क्या होगा? क्योंकि पर्दा एक शरई मसला है, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरई मसले पर कोई शख्स अमल ना करे तो अंजाम बुरा है, उनकी आखिरत अच्छी नहीं होगी। हमारी माएं और बहनें बिला वजह बेपर्दा हो जाती हैं। आखिरत के दिन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बता रहे हैं कि लोग नंगे होंगे मैदान महशर में, मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होंगी। शरई मसला हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सवाल करती है, पूछती है, शरई मसला के ताल्लुक से जानना चाहती है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर्दा शरई मसला है, अगर पर्दा औरतें पर्दा ना करेंगी तो मामला कितना खतरनाक होगा। तो आयशा, क़यामत के दिन मामला इतना खतरनाक होगा कि मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होंगी, लेकिन किसी को किसी की तरफ देखने का होश ही नहीं रहेगा। इस कदर बदहवासी का आलम होगा। हदीस क्या कहती है, हदीस से समझते हैं। वअन आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा क़ालत समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल युहशरु अन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला क़ुल्तु या रसूलल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़ फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंज़ुर बाज़ुहुम इला बाज़। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब सिफ़तिल जन्नह। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। राविया ये हदीस हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। वो फरमाती हैं कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप फरमा रहे थे कि युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला, के लोगों को क़यामत के दिन जब मैदान महशर में जमा किया जाएगा तो लोग नंगे बदन जमा होंगे, नंगे पांव जमा होंगे, खतना किए बगैर जमा होंगे, मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होंगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अंदर पर्दे का ख्याल आता है। कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़, मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी, मर्द औरतों की तरफ देखेंगे, औरतें मर्दों की तरफ देखेंगी। किस कदर बेशर्मी का माहौल होगा। आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंज़ुर बाज़ुहुम इला बाज़, क़यामत का मामला इतना खतरनाक होगा कि मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होंगी, लेकिन किसी को किसी की तरफ देखने का होश ही नहीं होगा। सबकी अपने अपने पड़ी होगी। हर गुनहगार की ख्वाहिश होगी कि अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, मेरे बाप को जहन्नम में डाल दे, मेरे बीवी को जहन्नम में डाल दे, मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दे, मेरी फैमिली को, मेरे खानदान को जहन्नम में डाल दे, पूरी दुनिया वालों को तो जहन्नम में डाल दे, सिर्फ अकेला मुझे तो जन्नत में डाल दे। इस कदर आदमी सेल्फिश हो जाएगा, इस कदर आदमी मतलबी हो जाएगा। कितना खतरनाक मामला होगा। उठाइए सूरह हज की इब्तिदाई आयत, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। ए लोगो डरो अपने रब से, डरो अपने परवरदिगार से। ए लोगो तक़वा वाली जिंदगी गुजारो, खौफो बंदगी वाली जिंदगी गुजारो। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही अजीम ज़लज़ला होगा। इतना अजीम ज़लज़ला होगा कि इस ज़लज़ले के एक झलक और एक झलक का अंजाम अल्लाह तबारक व तआला इसके बाद की आयत में वाज़ेह फरमाता है, यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़ात व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। के लोगों, क़यामत के दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। हमारी माएँ और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। कई बच्चे होते हैं, सबसे एक माँ मोहब्बत करती है, लेकिन दूध पीते बच्चे से माँ सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। दूध पीता बच्चा बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाती है। दूध पीता बच्चा रोने लगे, माँ रोने लगती है। दूध पीता बच्चा बेचैन हो जाए, माँ बेचैन हो जाती है। दूध पीते बच्चे की खातिर माँ मनपसंद खाना नहीं खाती है, मनपसंद मशरूब नहीं पीती है। दूध पीते बच्चे को छोड़कर के दूर जाना एक माँ को गवारा नहीं। कुरान माँ की उस ममता की मिसाल देता है कि यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़ात, के लोगों तुम क़यामत के दिन देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगी। बच्चा रो रहा है कि किस हाल में है, माँ को कोई परवाह ना होगी। बच्चा दूध मांग रहा है कि किस हाल में है, माँ को कोई परवाह ना होगी। बच्चा परेशान है या फिर किस हाल में है, माँ को कोई परवाह ना होगी। उस दिन माँ अपने दूध पीते बच्चे का ख्याल बिल्कुल अपने ज़हन व दिमाग से निकाल देंगी।
वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा, और हामिला औरतें अपने हमल को साकित कर देंगी। वतरन्नास सुकारा, और ए लोगों क़यामत के दिन तुम जब लोगों पर निगाहें दौड़ाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये सारे के सारे लोग नशा किए हुए हैं, शराब पिए हुए हैं, नशे के आलम में हैं। वमा हुम बेसुकारा, लेकिन नशे के आलम में नहीं होंगे, नशा नहीं किए होंगे। वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह ताला का अजाब ही इतना सख्त होगा कि लोग अपना होश खो बैठेंगे। बदहवासी के आलम में लोग वहां पर मौजूद होंगे, कोई किसी का पूछने वाला ना होगा। चाचा साहब सामने बैठ के खैनी खा रहे हैं। इस्लाम में सब चीजें हराम है। गुटखा का मामला हो, खैनी का मामला हो, सिगरेट का मामला हो, हर नशा आवर चीज हराम है। माशाअल्लाह टोपी पहने हुए हैं, नमाजी होंगे, छोड़ दीजिए, अल्लाह की खातिर ये सब चीजें छोड़ दीजिए। यहाँ पर दीन की बातें हो रही हैं, शरीयत की बातें हो रही हैं, आखिरत की तैयारी की बातें हो रही हैं। और आप और हम सब पता नहीं मौत कब आ जाए, और आप बिल्कुल उम्र के आखिरी स्टेज पर है। तौबा कीजिए इसी मजलिस में इंशाअल्लाह कि अल्लाह की खातिर मैं इसे खाना आज से छोड़ता हूँ। इंशाअल्लाह मुमकिन है कि अदा अल्लाह तबारक व तआला पसंद कर ले, और इसी अदा की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपकी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। तो क़यामत के दिन का मामला बड़ा खतरनाक मामला होगा। मामला कितना खतरनाक होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी वाज़ेह फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे का मामला, कहते पर्दे का मामला कहा, मामला इतना खतरनाक होगा कि माए दूध पीते बच्चों तक को भूल जाएंगे। तो क़यामत की तैयारी बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस ताल्लुक से बेचैन रहा करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस ताल्लुक से बेकरार रहा करते थे। हमारी माए और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। क़यामत की तैयारी का एक अंदाज ये होना चाहिए कि जिस तरह हमें जन्नत में जाने की फिक्र है, अपनी औलाद के ताल्लुक से भी ये फिक्र होनी चाहिए कि अगर मैं आखिरत में कामयाब हूं, मेरे बच्चे भी आखिरत में कामयाब हो जाए। ये फिक्र शरई फिक्र है, ये फिक्र दीनी फिक्र है। आज के माहौल में देखा जाता है कि गोया के माओ की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को पैदा करना है, उसके बाद से छोड़ दिया जाता है। बच्चे उसी माहौल में पल लेते हैं, उसी माहौल में पल जाते हैं, बस उन्हें खाना खिला दिया जाता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, और जब यही बच्चे 10 साल 15 साल के हो जाते हैं, कुछ नहीं जानते हैं दीन क्या है, माँ बाप के हुकूक क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, आखिरत की तैयारी का तरीका क्या है। मेरे भाइयों, जो लोग गार्जियन हजरात हैं, आखिरत की तैयारी के मामले में जिस तरह खुद फिक्र करते हैं, औलाद के ताल्लुक से भी ये फिक्र होनी चाहिए। आपने देखा होगा ये 10 साल के 15 साल के बच्चे ये बीड़ी पीते हुए नजर आते हैं, ये गांजा पीते हुए नजर आते हैं, ये शराब पीते हुए नजर आते हैं, ये जिना करते हुए नजर आते हैं। और ये 20 साल 22 साल के बच्चे और बच्चियां मुस्लिम घरों से भाग जाती हैं, भाग करके शादियां कर लेते हैं, गैरों तक से निकाह कर रहे हैं, गैरों तक से भी शादियां कर लेते हैं। वजह क्या है? आखिरत की तैयारी की फिक्र नहीं डालने का नतीजा है। वरना अगर आपने अपने 3 से 4 साल से लेकर के 15 साल के बच्चों के अंदर आपने ईमान की अहमियत को डाल दिया, इस्लाम क्या है उन्हें बता दिया, जन्नत क्या है बता दिया, जहन्नम क्या है बता दिया, अब दुनिया का कोई भी तूफान उनके ईमान को छीन नहीं सकता है। दुनिया की कोई भी साजिश उन्हें दीन से निकाल नहीं सकती है, इस्लाम से निकाल नहीं सकती है। ये फिक्र होनी चाहिए, फिक्र आखिरत के ताल्लुक से। माओ के अंदर ये फिक्र होनी चाहिए, बाप के अंदर ये फिक्र होनी चाहिए। एक सहाबिया है उम्मे हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो ग़ज़वा बद्र में शहीद हो जाते हैं, लेकिन उसकी माँ को ये पता नहीं चलता है कि मेरे बेटे को जो तीर आकर के लगता है मुसलमानों का तीर था कि काफिरों का तीर था। परेशान हो जाती है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए मेरा बेटा कहाँ है, बता दीजिए मेरा बेटा कहाँ है। फिक्र देखिए, औलाद की आखिरत के ताल्लुक से, औलाद की जन्नत के ताल्लुक से माँ की फिक्र क्या है, इस हदीस से हम समझ सकते हैं। हदीस क्या है, पढ़ते हैं। वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अन्ना उम्म रुबैय बिन्त अल-बरा व हिय उम्मु हारिसा
अतत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूल अल्लाह अला तुहद्दिथुनी अन हारिसा वकाना क़ुतिला यौम बदरिन असाबहु सहमुन गरबुन क़ाला फ़इन काना फ़िल जन्नति सबरतु व इन काना गैर ज़ालिका इस्तहद्तु अलैहि फ़िल बुका फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्म हारिसा इन्नहा जिनानुन फ़िल जन्ना व इन्न इब्नकी असाबल फ़िरदौसल आला रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल जिहाद। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि हज़रत उम्मे हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला तुहद्दिथुनी अन हारिसा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे हारिसा के बारे में बतलाइए। मेरा बेटा शहीद हुआ है लेकिन पता नहीं कैसे शहीद हुआ है, वाज़ेह कीजिए कि मेरा बेटा जन्नत में है कि मेरा बेटा जन्नत में नहीं है। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काना फिल जन्नति फसबरतु, अगर बात वाज़ेह हो जाएगी कि मेरा बेटा जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूंगी। इस जुमले से एक नुक्ता जो हमें समझना चाहिए कि औलाद की दीनी तरबियत पर ध्यान और औलाद की दीनी तरबियत इस हद तक की जाए कि एक माँ उस वक्त तक सुकून हासिल ना करे, एक बाप उस वक्त तक सुकून हासिल ना करे जब तक अपनी आंखों से देख ना ले कि उसका बेटा दीन की राह पर चल रहा है, दीनदार है, दीन से मोहब्बत करने वाला है, कुरान से मोहब्बत करने वाला है, नमाज से मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह के सामने रोने वाला है, आखिरत की तैयारी करने वाला है, हलाल और हराम की तमीज करने वाला है, सच और झूठ के दरमियान तमीज करने वाला है। तरबियत औलाद की आखिरत के ताल्लुक से माँ बाप इस अंदाज से करे यहाँ तक कि वो देख ले कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी औलाद शरीयत के मुताबिक अमल कर रही है, उस वक्त माँ बाप के दिल में सुकून की कैफियत होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। ये मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरा बेटा जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूंगी। व इन काना गैर ज़ालिका इस्तहद्तु अलैहि फिल बुका, और अगर पता चल जाए कि मेरा बेटा जन्नत में नहीं है मैं दुआ करूंगी, आंसू बहाऊंगी, बेटे की खातिर अल्लाह ताला से दुआ करूंगी। ये फिक्र देखिए, औलाद को जन्नत में ले जाने की फिक्र माँ के अंदर किस तरह से होनी चाहिए। बेटा ला रहा है, एटीएम चोर है, हरामखोर है, बस माँ को पैसे चाहिए, माँ बाप को पैसे चाहिए। हमारे माशरे और समाज के अंदर ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं। बेटी पैसे ला रही है, कहाँ से ला रही है, बेगैरत बाप पूछता नहीं है। बेटी पैसे ला रही है, बाप को पैसा चाहिए, बेटी पैसा ला करके दे रही है, बस बेटी किसके साथ जा रही है देख रहा है बाप कि गैर महरम के साथ बेटी जा रही है, पैसा ला करके दे रही है, बाप को सिर्फ पैसा चाहिए। ये कोई फर्जी मामला नहीं है, ऐसा वाकयात है। इस माशरे और समाज के अंदर गैरत का पानी निकल जाए, बेगैरती आ जाए कि बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कोई पता नहीं है। बेटी मोबाइल से किससे बात कर रही है, मोबाइल में किन किन के नंबरात हैं, कोई माँ बाप को कोई परवाह नहीं। बेटा किससे रात रात भर बात कर रहा है, माँ बाप को कोई परवाह नहीं। तरबियत का कोई उसूल उनकी जिंदगी में नहीं है। बड़ा ही खतरनाक मामला है। यहाँ से समझ लीजिए कि दीन का जनाजा और आखिरत की तैयारी का जनाजा यहाँ से निकल रहा है। तो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरा बेटा जन्नत में नहीं है तो मैं आंसू बहाऊंगी, बेटे की खातिर में रब्बुल आलमीन के सामने रोऊंगी, गिरिया वजारी करूंगी। कहा ऐ उम्मे हारिसा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ उम्मे हारिसा इन्नहा जिनानुन फिल जन्ना, जन्नत में कई दर्जे हैं। वइन्नब्नकी असाबल फिरदौसल आला, उम्मे हारिसा आपका बेटा सिर्फ जन्नत में नहीं है बल्कि जन्नतुल फिरदौस में आपका बेटा है। औलाद की तरबियत का यह अंदाज होना चाहिए कि जिस तरह से आखिरत की फिक्र हमारे अंदर हो, औलाद की आखिरत की फिक्र भी हमारे अंदर हो। जिस तरह से हम जहन्नम से बचने की फिक्र करते हैं, औलाद को जहन्नम से बचाने की फिक्र भी हम करें, और ये दीनी जिम्मेदारी है। सूरह तहरीम आयत नंबर 6 उठाइए। इस आयत का खास ताल्लुक गार्जियन हजरात से है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, खुद को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने औलाद को, अपनी फैमिली को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो। ऐ ईमान वालों, जिस तरह से आपको जन्नत में जाने की फिक्र होती है, घर वालों के ताल्लुक से भी यही फिक्र होनी चाहिए। जिस तरह से आपको जहन्नम से बचने की फिक्र होती है, घर वालों के ताल्लुक से भी यही फिक्र होनी चाहिए। जिस तरह से रब्बुल आलमीन के सामने मैदान महशर में तने तनहा खड़ा होना है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये फिक्र होती है। ये फिक्र घर वालों में भी डालनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, खुद को भी जहन्नम से बचने की फिक्र करो और अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाने की फिक्र करो। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। उस जहन्नम पर रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो सख्त किस्म के हैं, मजबूत हैं। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी ये फरिश्ते नहीं करते हैं, वही ये फरिश्ते करते हैं जिन बातों का इन्हें हुक्म दिया जाता है। तो फैमिली से भी कहा गया है कि जहन्नम से बचने की फिक्र, ये मिजाज अगर माँ बाप में पैदा हो जाए, जहन्नम से बचाने की फिक्र औलाद के ताल्लुक से मिजाज अगर मुआशरे और समाज के अंदर पैदा हो जाए, तो मुआशरा बहुत ही जल्द सुधार की तरफ बढ़ेगा इंशाअल्लाह। लोग कुरान और हदीस को समझेंगे इंशाअल्लाह। जरूरत इस बात की है कि तालीम पर फोकस कीजिए, दीनी तालीम को परवाम कीजिए। अपने बच्चों को मस्जिद में डालिए, अपने बच्चों को मकतब में डालिए, उन्हें कुरान पढ़ाइए, उन्हें नमाज का तरीका बताइए, उन्हें वजू का तरीका बताइए, उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ने का तरीका बताइए, माँ बाप की खिदमत करने का तरीका बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक रोजा रखने का तरीका बताइए, हज करने का तरीका बताइए, कब्र की तैयारी का तरीका बताइए। रब्बुल आलमीन के सामने जो सवालात किए जाएंगे क़यामत के दिन, उन सवालात उनके जहनों में डालिए। ये क्या है? फिक्र आखिरत की तैयारी का शरई नमूना है। एक मुसलमान की जिंदगी में फिक्र आखिरत के ताल्लुक से यही तस्वुर होना चाहिए, यही मामला होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में है, कब्र की खुदाई चल रही है, कब्र की खुदाई चल रही है। कब्र के किनारे बैठ जाते हैं, तस्वुर करते हैं, आना है, मुझे भी यहाँ आना है, मुझे भी यहाँ आना है। उस कब्र के किनारे बैठ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोते हैं कि आपके आंसुओं से जमीन भीग जाती है। ये उस शख्सियत की तैयारी का मामला है जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हैं। क्या है हदीस से समझते हैं। वानिल बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जनाजा फजलस अला शफीरिल क़ब्र फबका हत्ता बल्लत थरा सुम्मा क़ाला या इख़वानी लिमिथलि हाज़ा फ़अइदु। रवाहु इब्न माजा फी अब्वाब ज़ुहद। इब्न माजा के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस है बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में थे। फजलस अला शफीरिल क़ब्र फबका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठ जाते हैं, अभी कब्र की तैयारी चल रही होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों, कब्र से ज्यादा खतरनाक मंजर हमने नहीं देखा है, कब्र से ज्यादा हौलनाक मंजर हमने नहीं देखा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी कब्र के पास से गुजरते इतना रोते कि आंसुओं की वजह से दाढ़ी मुबारक भीग जाया करती थी। ये मामला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठे हैं। फबका हत्ता बल्लत थरा। इतना रोते हैं कि आंसुओं से जमीन भीग जाती है। और रोते रोते अपनी उम्मत को आपने पैगाम दिया था कि या इख़वानी लिमिथलि हाज़ा फ़अइदु। ऐ मेरे भाइयों, इस घर की तैयारी करो,
قبر کی تیاری کرو. قبر کی تیاری میں جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے. قبر کے سوالات و جوابات میں جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے. جو شخص جی رہا ہے اور قبر میں سامان روشنی پیدا کرنے کے لیے جی رہا ہے وہی شخص کامیاب ہے. وہی شخص با مقصد زندگی گزار رہا ہے. وہی شخص زندگی کے مقصد کو سمجھا ہوا ہے اور مختصر زندگی میں نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے تیاری کر رہا ہے. ایسا معاملہ ہونا چاہیے. یا اخوانی لمثل ھذا فائتو، اے میرے بھائیوں اس گھر کی تیاری کرو، یعنی قبر کی تیاری کرو. ہمارے مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں. آخرت کی تیاری کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اصول بتائے تھے. آپ نے کہا تھا کہ جو عورت ان 4 اصولوں پر کاربند رہے، 4 اصولوں پر کاربند رہ کر کے زندگی گزارے، جنت کے 8 دروازے ہیں. 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. 8 دروازوں میں سے جس دروازہ سے چاہے وہ شخص وہ عورت داخل ہو جائے. کیا ہے حدیث؟ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واتات بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت. رواہ ابن حبان فی صحیح. ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها، جو عورت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، کرنی چاہیے. یہ بہانہ وہ بہانہ سب کچھ ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے، نماز کی پابندی کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے. آپ اگر نماز نہیں پڑھیں گے آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ بچوں کا زیادہ تر وقت ماں کے پاس گزرتا ہے، بچپن میں خاص کر کے. باپ تو باہر رہتے ہیں. تو المرأة اذا صلت خمسها، جو عورت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے، وصامت شهرها، رمضان کے روزہ رکھے، واحسنت فرجها، اور جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے. بڑا مسئلہ ہے، زناکاری مسلم معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے. بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ ماں بھی زناکار ہے، بیٹی بھی زناکار ہے. زناکاری مسلم معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے. لہذا جس معاشرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نکلتا جائے، فکر آخرت کا معاملہ ختم ہوتا جائے، وہ معاشرہ زناکاری اور بدکاری میں ملوث ہو جاتا ہے اور پھر ایسے معاشرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. جو عورت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے، جو عورت رمضان کا روزہ رکھے، جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. یہ 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا امت محمدیہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ مقام ہے. لیکن یہاں بھی یہ ہونا چاہیے کہ عورت شرعی باتوں میں اپنے شوہر کی بات مانے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. شوہر کہے کہ تم بے پردہ ہو جاؤ، بے پردہ نہیں ہونا. شوہر کہے کہ نماز نہ پڑھو، یہاں پر شوہر کی بات نہیں ماننی ہے. شرعی دائرے میں شوہر کی اطاعت کرنی ہے. کئی سارے گھر جو بگڑے ہیں، جو خراب ہوئے ہیں، کئی سارے گھروں کا معاملہ جو چوپٹ ہوا ہے، وجہ بہت سارے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے انڈر میں نہیں ہوتی ہے، شوہر کی اطاعت کرنے والی نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے ماں باپ کی خدمت کا معاملہ متاثر ہوتا ہے، بہنوں کے حقوق کا معاملہ متاثر ہوتا ہے، بھائیوں کے حقوق کا معاملہ متاثر ہوتا ہے. ہم نہیں جانتے ہیں، ہم آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. بھائی اس عورت کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی جنت آپ کے شوہر کی اطاعت میں ہے، اور آپ کے شوہر کی جنت آپ کے شوہر کے لیے ان کی جنت آپ کی ساس کی اطاعت میں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو جو عورت
नमाज पंजगाना की पाबंदी करे, रोजा रखे, शर्मगाह की हिफाजत करे, शोहर की शरई कामों में इताअत करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों में से वो औरत जिस दरवाजे से भी जन्नत में जाना चाहे उनके लिए आजादी है, जिस दरवाजे से भी जन्नत में जाना चाहे दाखिल हो जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर यह वाज़ेह फरमाया था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मस्जिद के नमाजी होते हैं लेकिन तन्हाई में गुनाह करते हैं, रोज़ा रखने वाले होते हैं, लोगों के साथ लोगों के सामने बाअखलाक होते हैं लेकिन तन्हाई में गुनाह करते हैं, हराम काम करते हैं। मोबाइल का दौर है, खास करके नौजवान हजरात का मामला बड़ा खतरनाक है। आखिरत की तैयारी का मामला और आखिरत की फिक्र का मामला ये है कि आदमी जिस तरह से लोगों में पाक व साफ व शफाफ रहता है, हमारी तन्हाई भी क्या हो गुनाहों से पाक हो। तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला का डर, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हमारे सीने में हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया था एक मौके पर कि क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे जिनके अमाल, जिनकी नेकियां तिहामा पहाड़ के बराबर बड़ी बड़ी नेकियां होंगी, पहाड़ों जैसी नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन नेकियों को ज़र्रात में बदल देगा। शरीयत के मुताबिक की जाने वाली नेकियां होंगी लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाएगा। वजह क्या होगी, एक हदीस से समझते हैं। वअन सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनाति अमसालि जिबालि तिहामा बीज़ा फयजअलुहा अल्लाहु हबाअम मंसूरा। क़ाल सौबान या रसूलल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकूना मिनहुम व नहनु ला नअलम। फ़क़ाल अमा इन्नहुम इख़वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम व याख़ुज़ूना मिनल लैलि कमा ताख़ुज़ून वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा ख़लौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। रवाहु इब्न माजा फ़ी अब्वाबिज़ ज़ुहद। इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती, कि लोगों अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ यातूना यौमल क़ियामति बिहसनाति अमसालि जिबालि तिहामा बीज़ा, जो क़ियामत के दिन तिहामा पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएंगे। बड़ी बड़ी नेकियां होंगी, साफ शफाफ और कबूल की जाने वाली नेकियां होंगी। फयजअलुहा अल्लाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह तबारक व तआला उन नेकियों को बेकार कर देगा। नमाज की नेकियां होंगी, रोजे की नेकियां होंगी, हज की नेकियां होंगी, ज़कात की नेकियां होंगी, सदकात व खैरात की नेकियां होंगी और अल्लाह के बंदों के हुकूक की नेकियां होंगी, बड़ी बड़ी नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बेकार कर देगा, ज़र्रात में बदल देगा, बेवक़ात कर देगा, बेवज़न बना देगा। वजह क्या है? हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकूना मिनहुम व नहनु ला नअलम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में हमें बतला दीजिए ताकि हम उनसे बचें, कैसा ना हो कि जाने अनजाने में उन लोगों में हमारा शुमार हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, अमा इन्नहुम इख़वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, ये वो लोग जिनकी नेकियां क़यामत के दिन बर्बाद हो जाएंगी, बेवक़्त हो जाएंगी, वो आप ही लोगों में से होंगे, वो आप ही के भाइयों में से होंगे, वो आपकी तरह नमाज पढ़ने वाले होंगे, वो आपकी तरह रोज़ा रखने वाले होंगे, वो आपकी तरह हज करने वाले होंगे, वो आपकी तरह ज़कात देने वाले होंगे, लेकिन मामला क्या होगा? वलाकिन्नहुम अक़वामुन, लेकिन ये ऐसे लोग होंगे इदा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा, ये लोगों के सामने तो नेकियां करने वाले होंगे, लेकिन ये वो लोग होंगे जब ये बंद कमरे में जाते हैं, तन्हाई में होते हैं तो हराम काम करते हैं, तन्हाई में जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने वाला अमल करते हैं। जब ये लोग तन्हाई में होते हैं वो अमल करते हैं जो अमल करना इस्लाम के अंदर हराम है। मोबाइल के गलत इस्तेमाल करने वाले रात की तन्हाई में या फिर दिन की तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने वाले
जिना का काम अंजाम देने वाले, मोबाइल का गलत इस्तेमाल और फहश फिल्में देख देख करके अपने अखलाक को, अपनी आदत को बिगाड़ने वाले, इनमें से ऐसे लोग हैं जो लोगों में तो बड़े सूफी नजर आते हैं, बड़े अल्लाह वाले नजर आते हैं, लेकिन तन्हाई में इनका मामला बड़ा खतरनाक होता है। इनका मामला, इनकी तन्हाई बड़ी खतरनाक होती है, इनकी तन्हाई गुनाहों से रंगीन होती है, इनकी तन्हाई अल्लाह ताला की नाफरमानियों से रंगीन होती है। ये वो लोग हैं जिनकी नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला बेकार कर देगा, पहाड़ जैसी नेकियां होंगी लेकिन अल्लाह ताला की यहाँ काबिल कबूल ना होगी। सूरह कहफ में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? सूरह कहफ आयत नंबर 49 के अंदर, डरना चाहिए, आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, नामाए अमाल क़यामत के दिन रख दिया जाएगा। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, तो आप देखोगे कि जुर्म करने वाले, गुनाह करने वाले डरे डरे नजर आएंगे, खौफ खाए हुए नजर आएंगे। वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, वो कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, इस किताब को क्या हो गया है। तन्हाई के गुनाह भी इस किताब में मौजूद हैं, शहर से दूर जाकर के किए गए गुनाह भी इस किताब में मौजूद हैं, बंद कमरे में की गई नाफरमानियां भी इस किताब में मौजूद हैं। छोटे से छोटे गुनाह, जिन गुनाहों को हम गुनाह समझते ही नहीं है, वो गुनाह भी इस किताब में मौजूद है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। कुरान कहता है कि जो कुछ दुनिया के अंदर उन्होंने अमल किया होगा, अच्छा अमल होगा, बुरा अमल होगा, वहां पर हाजिर पाएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों पर जुल्म नहीं करने वाला है। तो आखिरत की फिक्र एक मुसलमान के अंदर जागुज़ी होनी चाहिए। तालीम का मकसद आखिरत की फिक्र हो, तरबियत का मकसद आखिरत की फिक्र हो। दुनिया में जो भी अमाल कर रहे हैं, शरीयत के मुताबिक किए जाने वाले अमाल का मकसद आखिरत की फिक्र होनी चाहिए, आखिरत की तैयारी होनी चाहिए। कब्र की तन्हाई में रोशनी का सामान कैसे पैदा हो, ये मामला होना चाहिए। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दुनियावी ज़िंदगी में कुरान और हदीस के मुताबिक आखिरत की तैयारी करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमारी नेकियों को आखिरत के दिन कामयाबी का जरिया बना दे। परवरदिगारा हमारे टूटे फूटे अमाल को आखिरत के दिन नजात का जरिया बना दे। परवरदिगारा जो लोग फिक्र आखिरत से दूर होकर के मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें कब्र की तन्हाई का खौफ पैदा फरमा। रब्बुल आलमीन के सामने तन्हा खड़ा होने का खौफ उनके दिल में तू डाल दे, और तेरी तरफ लौटने फरमा। ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। नौजवान तबका, चाहे मर्द का तबका हो चाहे खवातीन का तबका हो, अपनी जवानी की कदर करने को तौफीक अता फरमा। अपनी जवानी को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत में लगाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह के दीन के लिए लगाना, अल्लाह के दीन में लगाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हम तमाम को, माशरे में जिंदगी गुजारने वाले हर जिम्मेदार को, हर मसऊल को अपनी जिम्मेदारी आखिरत के ताल्लुक से समझने की तौफीक अता फरमा। माँ बाप को फिक्र आखिरत करने की, फिक्र आखिरत का जज्बा अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। औलाद के ताल्लुक से फिक्र आखिरत का जज्बा पैदा रख करके औलाद की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। मुख्तसर सी जिंदगी में ना खत्म होने वाली जिंदगी के लिए ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।